My name is Jawahar Kallankar. I'm a retired mechanical engineer, age 75. I started as a hobby for photography after retirement. I'm into photography for last 5 to 8 years, mainly in wild, landscape and nature photography. I had few concepts which were cleared by Mr. Sumit, and especially on the lighting conditions, use of lenses, and how f-stops have to be used for different conditions. As well as he explained the basic three concepts of aperture, ISO and exposure, all the three. I appreciate what he could impart his knowledge to us. Thank you. My name is Rahul Kandalkar. I belong to Amravati, but I work here as a civil engineer in Pune. I'm into photography from last 1.5 years. I started obviously with the nature photography first, but I find my interest in portrait photography, candid portraits. Photography is like a passion, like how you can create a photos, story, how to bring back the story in still 2D, in 2D. How can you bring back the story in front of our friends, whatever we have, friends, colleagues, and loved ones we have. So I started building my photography habits since then, and I'm gradually moving towards the professional approach. Then I all of a sudden found the today's event, nature photography workshop. There I got to know various things about shutter speed, ISO, ISO. Then there is a aperture, how to adjust this setting basically. And after that, even though I have a prime lens, sir has explained me how to click with that even prime lens. How can you get most out of it in the prime lens also? So that is a big learning for me. Then next learning is we can use the viewfinder for better focusing. That is also great learning to move forward from here. So to capture the photos, and everything about today's session is amazing. Lot of learning, and hope to continue again. Thank you so much. Yeah, so I was instructed or told to use f8, f9 for landscapes to get maximum. There is a rule of thumb for landscape, f11 to f16. That's the rule of thumb for aperture. In portrait, we stay around f5.6. That's the actually traditional way of doing portrait photography. But आज के time में it's a totally different thing. We are going to 1.4 also. So it's creativity. Even f11 to f16. f11 to f16, 16. But when you're using a tripod, maybe you can raise a little bit more. Aperture for landscapes. f16 is more than sufficient. f11 पे आपका infinity आता है. Most of the lens they go to infinity. When we say infinity, it means anything behind far in kilometers away also you can recognize in your photo. Okay, that's a building, that's a mountain. That's the infinity. अब जब lens वाइट बैलेंस को मतलब उस एक्चुअली क्या रहता है, उसमें कैसे एडजस्ट करना है? वाइट बैलेंस का ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बट कीप इट सिंपल. व्हेन यू आर शूटिंग इन रो, यू हैव टू एडजस्ट योर वाइट बैलेंस इन एडिटिंग ओनली. ओके, आपका जितना मर्जी उसमें एडजस्ट कर लो, वो वहाँ पे रीसेट हो जाता है. अच्छा, so that's the benefit of shooting in raw. Yes, so it's a reset. और आपका फोटो, you will see that photos not quite good, or you will feel that photo coming dull जब आप रो में शूट करते हैं. रो में शूट करेंगे बिकॉज इट्स अनप्रोसेस्ड रो फोटो. उसका रो भी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स अनप्रोसेस्ड, अनपॉलिश्ड. सो अनपॉलिश्ड फोटो थोड़ा डल दिखेगा. देन वी हैव टू
करेक्ट द कंट्रास्ट, थोड़ा उसमें जाना आएगा फोटो में. वी हैव टू करेक्ट द कलर्स. देयर आर मैनी फ्री एप्लीकेशन भी बहुत सारी हैं. अभी तो मैं चेक कर रहा हूँ कि विंडो में इतना अच्छा एडिटिंग आ गया, फोटो एडिटर. हाँ. तो आई वाज सरप्राइज कि उसमें आपका स्पॉट रिमूवल टूल आ गया. अच्छा. सो स्पॉट मतलब बेसिक एडिटिंग वी कैन इजीली डू. सो वाइट बैलेंस यू कैन कीप इट ऑन ऑटो. दैट्स अ सिंपल थिंग कि अपना ऑटो में रखो उसको एंड शूट इन रो. बट इफ यू आर शूटिंग इन JPEG तब आपको अकॉर्डिंग टू लाइट यू हैव टू एडजस्ट कि अगर आप अराउंड सनलाइट सनराइज गोल्डन आवर्स में काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा वार्म करके रखो तो फोटो थोड़ा और वार्म आएगा, वार्म फील आएगा फोटो में. इन अदर वर्ड कि मतलब कैसा भी उसको आपको इफेक्ट देना है JPEG फॉर्मेट में, वी हैव टू एडजस्ट इट राइट देयर. क्योंकि एक बार वो वहाँ पे कर दिया फोटो क्लिक होगी, इट्स लॉक्ड. उसको लॉक्ड वर्जन बोलते हैं JPEG को. इट्स अ लॉक्ड वर्जन. वहाँ पे आप शेडो, हाईलाइट, वाइट बैलेंस एडजस्ट नहीं कर सकते, नहीं होगा. ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं कर सकते. वो करने भी जाएंगे ना वो एक अलग ही चीज दिखेगा आपको, क्योंकि इट्स एडजस्टिंग फॉर द कंप्लीट लेयर ऑफ दैट फोटो. बट अगर आप रो में हैं तो इट्स एडजस्टिंग दैट एग्जैक्ट पोर्शन जहाँ पे आप करना चाहते हैं उतना करेगा. शेडो मतलब वो शेडो को ही सिर्फ रेस करेगा, हाईलाइट को मतलब वो हाईलाइट को ही कंट्रोल करेगा. एक चीज को पॉइंट पूरा को उसको कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल बोला ना, शेडो, हाईलाइट, कंट्रास्ट यू कैन कंट्रोल इन रो. ओके. वाइट बैलेंस. वाइट बैलेंस. हाँ, रो प्लस फाइन मीन्स एक JPEG फाइल, एक रो फाइल. आप वहां से ट्राई कर सकते हो बिल्कुल एज से 55 mm पे यू विल गेट समथिंग. सीधा भी आया है इसका. थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा आउट किधर है क्या? पूरा ऑटो फोकस लग रहा है. ऑटो फोकस मैनुअल मोड से क्या होता है? आपका फोकस तो ऑटो रहेगा ना? नहीं, बट ऑटो में रखेंगे ना उसको. मैनुअल भी गो व्हेन वी आर डूइंग मैक्रो फोटोग्राफी, तब हम मैनुअल मोड में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड रहता है ना. इट्स डिफिकल्ट टू डू इट इन ऑटो. वहाँ पे आपको मैनुअल में जाना ही है. और जब भी हम सब्जेक्ट को लेते हैं ना तो पैरेलल में लेते हैं. यहाँ पे इधर आइए, इस साइड आइए. पैरेलल में लेंगे कि पूरा जो पैरेलल लाइन है इसका उसके फ्रंट में हो आप. हम ग्रुप फोटो भी खींचते हैं ना तो उसमें सबको लाइन में खड़ा करते हैं. तो इट्स लाइक दैट ओनली. गेट एज क्लोज एज पॉसिबल, जितना अलाउ करें. हाँ, एंगल को लेना, पीछे बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा आपका, थोड़ा ऊपर. यस. नहीं, ये नहीं. जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ दोस. एक बार आपने ये क्वालिटी पकड़ ली ना, आप पीछे नहीं जा सकते. आपको पता है कि ये इस क्वालिटी की फोटो ले सकता है. एक बार वो सेंस में आ जाना चाहिए अपने कि हमारा ये कैपेबिलिटी है. वंस यू गेट दैट ना फील कि मेरा कैपेबिलिटी है, देन यू नो. नहीं तो हमको क्या लगता है कि इसका तो बड़ा लेंस नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, ऐसे ऐसे फीलिंग्स आते हैं. सो दैट्स द थिंग वी हैव टू कम आउट. हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे अभी एजेंडा की. ब्रिंग द राइट लेंस फॉर नेचर फोटोग्राफी. तो नेचर फोटोग्राफी के लिए राइट लेंस क्या होता है? तो नेचर फोटोग्राफी राइट लेंस क्या होगा? राइट लेंस मीन्स कि आप किस टाइप की फोटोग्राफी करने जा रहे हैं. नेचर फोटोग्राफी में आपको वाइल्ड लाइफ हो जाता है, उसके लिए बड़े बड़े लेंस चाहिए अपने को. वी नीड अ बिग जूम लेंस. 400, 600, 300 तो हम स्टार्ट करते हैं. इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट. आपका अगर मैक्रो में जा रहे हैं देन वी नीड स्पेशलाइज्ड मैक्रो लेंस. मैक्रो लेंस चाहिए उसके अपने. छोटे के लिए भी होता है और बड़ी वाइड के लिए भी रहता है.
मैक्रो मीन्स मैक्रो, मैक्रोस्कोप साइंस में पता होगा, माइक्रोस्कोप रेशेज दिखते हैं ना उसमें थ्रेड के, तो उस डिटेल तक जाना पड़ता है हमें नेचर में, तो उसको मैक्रो फोटोग्राफी कहते हैं। सो इट्स क्वाइट ब्रॉड सब्जेक्ट, इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू नेचर। पोर्ट्रेट में भी मैक्रो यूज़ करते हैं डिटेल्स लाने के लिए, प्रोडक्ट में भी यूज़ करते हैं, फूड में भी यूज़ करते हैं, सो इट्स क्वाइट ब्रॉड। और उसके बाद अब फिर हमारा आता है कि फुल हैबिटेट अपने कैप्चर करना है, तो उसके लिए वाइड एंगल लेंस, पूरा एनवायरनमेंट दिखाना है, लैंडस्केप जैसे। सो वाइल्ड लाइफ के लिए आपको जूम लेंस, मैक्रो लेंस फॉर डिटेल्स, एंड देन वाइड एंगल टू कवर कंप्लीट एनवायरनमेंट हैबिटेट पूरा दिखाने के लिए। तो दीज काइंड ऑफ लेंसेज वी शुड कैरी, और अपने पास पहले से ही डिटरमिन रहना चाहिए कि दैट विच काइंड ऑफ फोटोग्राफी वी आर गोइंग टू डू, बी स्ट्रिक्ट टू विद दैट। दूर नहीं, 10 to 15 फीट, यस, ज़्यादा दूर नहीं। इवन हम उसको पास में भी बोलते हैं, इसका लिमिट क्या है, 5 फीट का है। सो आई कैन आस्क माय सब्जेक्ट टू कम नियर दैट ओनली, अराउंड 6 फीट ऑल्सो। तो उसमें भी फुल जूम करके, अगर उसका फ्रेम पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा 1-2 स्टेप पीछे लेके देन वी कैन कर, ऐसे करते हैं। जो आपका जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स का प्रेफर्ड लेंस जो रहता है वो 70-200 चल रहा है आजकल, 200, उसमें f2.8 आता है, 2.4 आता है, f2 आता है, तो वो चल रहा है आजकल फेवरेट्स फोटोग्राफर्स का, क्योंकि उसमें क्या है, आपको 200 पे विन ऑन दैट एपर्चर बहुत अच्छा बोके मिलता है, और वो भी 200 mm पे, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा आर्ट फोटो करते हैं अब आर्ट की बात कर रहे हैं थोड़ा, नहीं इधर आओ ना यहाँ पे।